الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان قرآنی عربی گرامر کا آج ہم چوتھا لیکچر شروع کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسم سے شروع کیا ہے. پچھلے لیکچرز میں ہم نے جانا کہ اسم ہر ایک نام کو کہتے ہیں، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شے کا نام. اور اسم میں عربی میں کسی چیز کی صفت، چاہے وہ صفت اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کو بھی اسم کے زمرے میں لایا جاتا ہے. ہم نے یہ جانا تھا کہ اسم کو پڑھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے جنس، اس کے بعد عدد کے بعد وسعت، اور لاسٹ میں اعراب. ہم نے 2 چیزوں کا تو علم جان لیا، اس کے بارے میں ہم نے انفارمیشن آپ کو دے دی لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 میں. ہم نے یہ بھی جانا کہ اسم جو ہے، جب ہم جانتے ہیں جنس کے اعتبار سے، اسم یا تو ہمارے پاس مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اسم یا تو واحد ہوگا یا پھر تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. آج کا جو موضوع ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ اسم کی قسم وسعت کے لحاظ سے. جیسا کہ آپ اس پروگرام میں کچھ لیکچرز سے جان رہے ہیں کہ عربی کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، جب بھی ہم اسم کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اسم کے متعلق ہمیں انفارمیشن حاصل کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسم کے بارے میں 4 چیزیں. یہ اسم جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جنس کیا ہے، چاہے یعنی ہمارے پاس یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کا عدد کیا ہے، یہ واحد ہے یعنی سنگولر ہے، یہ مثنیٰ ہے یعنی ڈیول ہے، یا یہ جمع ہے جس کو ہم پلورل کہتے ہیں. تیسری بات جو آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے وہ ہے وسعت. اور آخری بات وہ ہے اعرابی حالت، اس کو ہم آگے انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں پڑھیں گے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اسم کے متعلق معلومات نمبر 3. یعنی جب بھی آپ اسم پڑھیں گے قرآن مجید میں یا عربی گرامر میں، تو اسم کے بارے میں جو تیسری امپورٹنٹ بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے وسعت. انگلش میں وسعت کو کیپیسٹی کہتے ہیں. یعنی وسعت سے مراد کسی بھی اسم کے متعلق یہ پتہ ہونا کہ یہ جو اسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. معرفہ مطلب وہ پراپر ناؤن ہے، نکرہ یعنی کامن ناؤن ہے. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بھی اسم، جس اسم کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، وہ اسم ہمارے پاس کوئی خاص اسم ہے، پراپر ناؤن ہے، یا کوئی عام اسم ہے، یا کامن ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. تو وسعت کا جو معنی ہے یہ اصل میں گنجائش ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی اسم نکرہ ہوتا ہے اس کی جو وسعت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جب کہ معرفہ اگر اسم ہوتا ہے تو اس کی جو یعنی وسعت ہے یا گنجائش ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو عربی میں کہوں گا کہ ایک آدمی کو کیا کہتے ہیں، تو عربی میں آدمی کو کہتے ہیں رجلن. اب یہ رجلن جو ہے، یہ آدمی جو ہے، یہ سب آدمی ہو سکتے ہیں. دنیا کے سب لوگ، کسی بھی انسان، کسی بھی آدمی کو ہم عربی میں رجلن کہتے ہیں. مگر اگر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک مجمع میں ان تمام انسانوں میں آپ بتائیے کہ خالد کون ہے، یا محمود کون ہے، یا ہلال کون ہے، یا عباس کون ہے، سالم کون ہے، تو یہ جو نام دے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نام ایک پراپر ناؤن ہوگا. ان کی جو گنجائش ہوگی، ان کی جو تعداد ہوگی اس مجمع میں وہ بہت ہی کم ہوگی. اسی لیے جب بھی میں آپ کو نام لے کے بتاؤں اس اسم کے بارے میں، کوئی پراپر ناؤن کے بارے میں،
تو उसकी जो वुसअत है, गुंजाइश है, वो कम हो जाती है। और अगर मैं आपको कॉमनली किसी भी इसम के बारे में पूछूं तो उसकी जो वुसअत है वो बहुत ही बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि मारिफा इसम वो इसम है जो खास है, जो मखसूस है, और इसका इतलाक हर एक इसम के ऊपर नहीं आता, बल्कि वो एक खास इसम है, इसलिए उसकी वुसअत कम हो जाती है। तो वुसअत के लिहाज से अब हमें पता चला इसम के जो किस्में हैं वो दो है। वुसअत के लिहाज से, कैपेसिटी के हिसाब से इसम या तो इसमें मारिफा होगा, यानी जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, या फिर ये इसम इसमें नकिरा होगा जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी हम ये बता सकते हैं जब भी आपके सामने कोई इसम आए, आपने पता चल गया कि ये जेंडर के लिहाज से मेल है या फीमेल है, ये तादाद के लिहाज से एक है, दो है या दो से ज्यादा है, मगर वुसअत के हिसाब से क्या है, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। याद रखना चाहिए इसम जो मारिफा होता है, यानी जब इसम प्रॉपर नाउन में आता है, उसकी सिर्फ 5 किस्में हैं। असल में तो 7 किस्में हैं, 2 किस्में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसको जानने के लिए कुछ और चीजों का भी जानना जरूरी है। मगर इस वक्त के हिसाब से आप याद रखिएगा, इसमें मारिफा की अरबी में 5 किस्में हैं। यानी अगर आप अरबी में इन 5 कैटेगरीज में कोई भी इसम पाएंगे तो याद रखना चाहिए इस वक्त जो इसम होगा वो इसमें मारिफा होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा, ये खास नाउन होगा, इसकी गुंजाइश कम होगी। और अगर इसम इन 5 ग्रुप्स में ना हो, या इन 5 ग्रुप्स में कोई भी आपका नाउन फॉल ना कर पाए, कोई भी 5 में से नहीं आप उसको पाए, तो याद रखना चाहिए उस वक्त वो इसम नकिरा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन 5 किस्मों का इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वो 5 कैटेगरीज क्या है, कि अगर इसम इन 5 कैटेगरीज में होगा उस वक्त वो इसम मारिफा होगा, और इसके अलावा जब भी आप इसम देखेंगे वो नकिरा होगा, यानी वो कॉमन नाउन होगा। अच्छा, जब भी आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, अरबी ग्रामर पढ़ेंगे, इस वुसअत की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे बहुत सारे गुत्थियां खुल जाती है, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। किसी कोई हुक्म खास होता है और हमें पता नहीं होता, हम उसको आम हुक्म में ले जाते हैं। कोई हुक्म आम होता है, हम उसको खास में ले जाते हैं। तो इसीलिए जो कुरान मजीद का रमूज, उसके जो मतालिब समझना है, वो जरूरी उसी वक्त आप 100% सीख सकते हैं जब आपको कुरान मजीद उसी की जबान में आए पढ़ना जिस जबान में वो नाजिल हुआ है, और वो अरबी ग्रामर है। मैं आपको वसूख से बताता चलूं कि 100% कुरान मजीद का जो ट्रांसलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। कुरान मजीद के अलावा जितनी भी बाकी जबानें हैं, आप किसी भी जबान में 100% ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। कुरान तो अल्लाह की किताब है, इसको 100% ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आप कुरान में गोतजन होना चाहते हैं, कुरान मजीद को समझना चाहते हैं, उसमें अपने मसाइल अखज़ करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि अरबी ग्रामर के हिसाब से कुरान मजीद को पढ़ा जाए। अब हम डायरेक्टली आएंगे इसमें मारिफा की किस्मों पर। यानी आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप इसम इन 5 कैटेगरीज में देखेंगे, उस वक्त इसम जो है मारिफा होगा, प्रॉपर नाउन होगा, खास नाउन होगा, और इसकी जो वुसअत है वो कम होगी। और इनके अलावा जब भी आप इसम देखेंगे इसमें नकिरा होगा। मैं एक इंफॉर्मेशन बार बार दोहराता हूं ताकि आपके जहनिशीन ये चीजें आए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार एक ही इंफॉर्मेशन को 2 3 4 बार दोहराता हूं, ताकि जब भी आप इस लेक्चर को सुने या आप नोट्स बनाए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो। तो सबसे पहली किस्म, इसम जब मारिफा होता है, इसमें पहली किस्म है इसमें अलम। इसमें अलम कहते हैं, नॉर्मली इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी इसम का जब मखसूसियत के साथ नाम दिया जाए तब हम उस इसम को इसमें अलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी मैं किसी मर्द का नाम बताऊं या औरत का नाम बताऊं या किसी चीज में उसकी क्वालिटीज का नाम बताऊं, तब वो इसम नकिरा से निकलकर मारिफा में चला जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कहूंगा इमरात, औरत, तो ये कोई आम औरत हो सकती है, इसका जो वसअत है वो नकिरा है। मगर अगर मैं कहूंगा आयशा तू, अब आयशा जो है ये
एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, किसी एक खास खातून का नाम है। इसी तरह मोहम्मदुन, ये किसी शख्स का नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर मैं कहूंगा कोई भी मुल्क, मगर साथ साथ में कहूंगा किसी मुल्क का नाम, जैसे पाकिस्तान, अरबी में पाकिस्तान कहेंगे, या अल हिंद, ठीक है, या कोई भी किसी भी शहर का नाम आप बताएंगे, वो डायरेक्टली यानी नकीरा से निकल के मारिफा में चला जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी, वुसअत के एतबार से कौन सा इसम मारिफा इसम है, उसमें पहली किस्म है इसमें अलम की, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी मखसूस नाम को इसमें अलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मदुन, आयशतु, पाकिस्तानु, यहाँ पर नाम लिखे हैं अब्बासु। इसी तरह सालिमु, या मैं हिलालू कहूंगा या मतीना कहूंगा। ये तमाम जो नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये खुद ब खुद ये बताते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है, और इसको हम अरबी में इसमें अलम कहते हैं। जब भी आप इसमें अलम देखेंगे, याद रखना चाहिए वो मारिफा इसम है, उस इसम का जो वसअत है या कैपेसिटी है वो मारिफा है। दूसरी किस्म इसम जब मारिफा होता है वो है इसमें ज़मीर। अरबी में इसमें ज़मीर, उर्दू में भी इसमें ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं या ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन या ज़मीर उस नाउन को कहते हैं जो किसी शख्स या चीज के यानी उसके यानी उसको जाहिर करने के लिए कोई हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने कहूंगा हुआ, अरबी में हुआ मतलब वो एक मर्द, वो एक, ठीक है, वो एक। मैंने किसी शख्स के बारे में बात की, मैं कहता हूं कि मोहम्मद नेक है। अब दूसरे जुमले में मोहम्मद के बजाय मैं कहूंगा वो अच्छा पढ़ने वाला है। अब मैंने दूसरे जुमले में मोहम्मद के बजाय लिखा वो, तो ये जो वो है इसको हम अरबी में ज़मीर कहते हैं, उर्दू में भी इसको ज़मीर कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। जब भी आप इसम बहसियत प्रोनाउन देखेंगे, बहसियत ज़मीर देखेंगे, याद रखना चाहिए उस वक्त जो इसमें ज़मीर है ये भी मारिफा है, ये नकिरा नहीं है, यानी ये खास है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है। मिसाल के तौर पर हुआ, वो एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अंता, तू एक या आप एक, ये भी इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए और सेकंड पर्सन के लिए। हुआ इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के लिए। अना, मैंने इसम इस्तेमाल किया, ज़मीर इस्तेमाल किया अपने लिए। अना, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये तमाम जो ज़माइर इस्तेमाल होते हैं इसम में, इन तमाम ज़माइर को याद रखिएगा, ये भी इसमें मारिफा में आते हैं, प्रॉपर नाउन में ये भी आते हैं। तो ये दो कैटेगरीज, जब भी आप इसम इन दो कैटेगरीज में देखेंगे, चाहे इसम अलम में होगा, इसमें अलम होगा, या इसमें ज़मीर होगा, इन दोनों सूरतों में इसम जो है मारिफा होगा। तीसरी, अच्छा एक और इनकी थोड़ा सा हम वजाहत करेंगे। ये जो दूसरा है हमारे पास जिसको हमने ज़मीर कहा, अब जब हम ज़मीर कहेंगे तो अरबी में जैसा कि दूसरी ज़बानों में नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं। एक तो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मसलन मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आपके साथ बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन हो गया, जिसके बारे में जो हमारे सामने मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों ग्रुप्स में जो भी हम ज़माइर इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम ज़माइर जो हमारे पास है वो प्रॉपर नाउन है, उनकी जो वसअत है वो मारिफा है। मिसाल के तौर पर हुआ का तर्जुमा अरबी में है वो एक। वो एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो एक मर्द या वो एक मुज़क्कर। हुमा, वो दो मुज़क्कर, क्योंकि मैंने आपको बताया तादाद के हिसाब से, अदद के हिसाब से इसम में एक, उसके बाद दो, उसके बाद जमा। तो हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर थर्ड पर्सन, हुम वो सब मुज़क्कर, वो सब मुज़क्कर थर्ड पर्सन, ये जमा है। तो ये हुआ वाहिद हो गया, हुमा
मुसन्ना हो गया, तस्निया हो गया, हुम जमा हो गया। हुआ का तर्जुमा है वो एक मुज़क्कर या वो एक मर्द, हुमा वो दो मुज़क्कर या वो दो मर्द, हुम वो सब मुज़क्कर या वो सब मर्द। ठीक है। इसी तरह चूंकि जिन्स के एतबार से हमें याद रखना चाहिए, हुआ के बजाय जब हम औरत के बारे में बात कहेंगे, मुअन्नस के बारे में बात करेंगे, तो हुआ के बजाय हम कहेंगे हिया। हिया का भी तर्जुमा है वो, मगर एक मुअन्नस, वो एक औरत या वो एक मुअन्नस। हुमा चाहे मर्द हो या औरतें हो, दो के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन के लिए। हुमा का तर्जुमा होगा वो दो मुज़क्कर या वो दो मुअन्नस, या आम जबान में वो दो मर्द या वो दो औरतें। हुन्ना, हुन्ना का तर्जुमा है वो सब औरतें, वो सब मुअन्नस। ठीक है। तो क्या क्या कहेंगे, ये तीनों जो हमारे पास है, 3 3 + 6, ये 6 के 6 सेगा हमारे थर्ड पर्सन के लिए है। हुआ, हुमा, हुम, हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम सब के लिए। ठीक है। औरत के लिए हिया, हुमा, हुन्ना एक, हिया, हुमा दो, हुन्ना सब औरतों के लिए। तो ये 6 सेगे जो हमारे पास है प्रोनाउन के या ज़माइर के, ये 6 के 6 हमें हमारे पास मेंशन करते हैं थर्ड पर्सन, यानी जो हमारे पास होता है कलाम के दौरान। तो ये 6 के 6 सेगे जब भी आप देखेंगे, ये हमारे पास इसमें ज़मीर के मिसालें हैं, और इसमें ज़मीर जब भी आप देखेंगे तो उसकी जो वुसअत है वो मारिफा होगी। सेकंड पर्सन के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है अंता। अंता का मतलब है आप। ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप यानी एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, एक मुज़क्कर के लिए अंता यानी आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द। इसके बरक्स में अंति, देखिए जबर और जेर से क्या फर्क पड़ता है। अंति आप एक औरत, अंतुमा बराबर अंतुमा दोनों तरफ, आप दो औरतें या आप दो मर्द, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अंतुन्ना आप सब औरतें। ठीक है। तो अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये जो 6 के 6 सेगे हैं, ये सेकंड पर्सन के लिए ज़माइर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और ये 6 के 6 सेगे भी इसमें ज़मीर की मिसालें हैं, किस्में हैं, और जब ये कभी भी आप देखेंगे तो याद रखिएगा ये भी इस्म मारिफा है। लास्ट में फर्स्ट पर्सन के लिए अना, अना हो गया मैं एक मर्द या मैं एक औरत, क्योंकि दोनों के लिए चाहे जिन्स के एतबार से मर्द हो या औरत, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, अना इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए। नहनु, नहनु होता है इस्तेमाल चाहे हम दो हो या दो से ज्यादा हो, एक ही सेगा है नहनु, यानी हम सब औरतें, हम सब मर्द। ठीक है। तो ये हमारे पास मिल के 14 सेगे हो गए, ज़माइर के 14 सेगे, जिसमें पहले 6 सेगे जो है ये थर्ड पर्सन के लिए हैं, दूसरे 6 सेगे जो है ये सेकंड पर्सन के लिए है, आपके लिए जिससे मैं बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन उसके बारे में जिसके बारे में बात कर रहा हूं, और 2 सेगे जो हमारे पास है ये मेरे लिए है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये 14 के 14 सेगे, इनको हम कहते हैं इसमें ज़माइर या इसमें ज़मीर। और इसमें ज़मीर जब भी आप अरबी में कुरान मजीद में देखेंगे, इस वक्त ये प्रॉपर नाउन होता है, इसकी वसअत जो है ये हमारे पास मारिफा होता है। तीसरी किस्म जब आप इस इस्म को देखेंगे मारिफा, उसको हम कहते हैं इस्म इशारा। इशारा का मतलब होता है वो इस्म जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। ही, शी, इट, दे, ये इशारा किया जाता है। ठीक है। तो अरबी में इशारा इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जितने भी अस्मा इस्तेमाल होते हैं वो तमाम अस्मा इशारा या इसमें इशारा कहलाते हैं। और इसमें इशारा जब भी अरबी में इस्तेमाल हो, याद रखना चाहिए ये मारिफा होता है। नेचुरली इसमें इशारा हमारे पास 2 किस्म के हो सकते हैं। इसमें इशारा करीब, वो इस्म जिसमें हम इशारा करते हैं नजदीक वाली चीजों के लिए, और इसमें इशारा बईद, वो इस्म
جو دور کے اسما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ, اور اسم اشارہ بعید کے لیے, دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ. جس طرح ہم نے جانا اس سے پہلے 14 سیغوں کے بارے میں, تو اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ جو اسم اشارہ ہے اس میں بھی ہمارے پاس 12 سیغے ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل نزدیک والے اسماء اشارہ, اسم اشارہ قریب جو کہلاتے ہیں وہ ہے ہاذا. ہاذا کا جو ترجمہ ہے وہ ہے یہ, اشارہ دے رہے ہیں یہ انہیں نزدیک کے لیے. اور ہاذا استعمال ہوتا ہے عدد کے حساب سے واحد اور جنس کے اعتبار سے مذکر. ترجمہ ہو گیا یہ ایک مذکر. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں واحد مذکر قریب, کیونکہ واحد ہے, مذکر ہے اور قریب کا صیغہ ہے. اب آپ دیکھیں جو دو چیزیں ہم نے اس سے پہلے اسم کے پڑھے تھے, جنس اور عدد, وہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو تیسرا امپورٹنٹ چیز ہے اسم کے بارے میں وسعت, یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے. مذکر واحد یعنی واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا, یعنی یہ. اگر آپ مثال کے طور پر کسی کو کہیں گے ہاذا جمل, یہ ایک اونٹ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم واحد کے لیے یعنی ایک کے لیے, نزدیک کے لیے اگر ہم اشارہ کرتے ہیں اور وہ مذکر ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا. تثنیہ یعنی دو کے لیے, دو اسما کے لیے اشارے کے لیے جو قریب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہاذانی. ہاذانی جیسے قرآن میں ہے ہاذانی ساحرانی, یعنی یہ دو جادوگر ہے. ہاذانی ساحرانی, یہ دو جادوگر ہے, ٹھیک ہے. تو دو کے لیے اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے قریب کے لیے, وہ بھی مذکر ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے ہاذانی کا صیغہ استعمال ہوگا. ترجمہ ہوگا یہ دو مذکر, ٹھیک ہے. اس کا صیغہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تثنیہ ہے. تثنیہ مطلب دو کے لیے عدد کے حساب سے, مذکر ہے جنس کے حساب سے مذکر ہے, اور چونکہ یہ ہے تو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی آپ عربی میں پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے تثنیہ مذکر قریب. اگر میں آپ کو کہوں گا ہاذانی جو ہے یہ اصل میں ہے کیا, تو آپ کو کہنا چاہیے ہاذانی جو ہے یہ تثنیہ ہے, مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ. اس کے بعد اگر آپ قریب کے لیے استعمال کریں گے جمع کی صورت میں مذکر کے بارے میں, تو استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی. ہاؤلائی, ٹھیک ہے. ہاؤلائی توابون, ترجمہ ہوگا یہ سب توبہ کرنے والے. ہاؤلائی یہ سب مذکر, تو کیا بنے گا صیغہ جمع, ٹھیک ہے, عدد کے حساب سے, مذکر جنس کے اعتبار سے, اور قریب. جمع مذکر قریب. اب دیکھیں تینوں چیزوں کو ہم اس میں ملا رہے ہیں. اسی طرح نزدیک کے لیے اگر ہم مؤنث کا صیغہ لکھیں گے یا بتائیں گے تو استعمال ہوگا ہاذہی. ہاذا استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے, مذکر کے لیے. ہاذہی اسم اشارہ قریب, مؤنث واحد کے لیے ہاذہی, ترجمہ یہ ایک مؤنث یا یہ ایک عورت. تو اس کا ہم صیغہ بنائیں گے واحد مؤنث قریب. تثنیہ مؤنث قریب کے لیے ہاتانی, جیسے یہاں پر ہاذانی استعمال ہوا, یہاں استعمال ہے ہاتانی, ترجمہ یہ دو مؤنث, یہ دو عورتیں. صیغہ کیا بنے گا تثنیہ مؤنث قریب. اسی طرح جمع مؤنث قریب کے لیے ہے ہاؤلائی. ہاؤلائی ہمارے پاس مذکر جمع قریب کے لیے بھی ہے, اور وہی صیغہ ہے جمع مؤنث قریب کے لیے. تو ہاؤلائی ہاؤلائی دونوں میں کامن ہے. جیسے پچھلے یعنی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا تھا, یعنی جو ہما ہما ہم نے پڑھا تھا وہ کامن ہے. یہ 6 صیغے ہمارے پاس جو ہے یہ اسم اشارہ قریب کے ہیں. جب بھی آپ یہ 6 صیغوں میں کوئی بھی صیغہ دیکھیں گے عربی میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہوا, آپ کو یاد رکھنا چاہیے اسم اشارہ ہے. اور اسم اشارہ جب بھی استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں وہ معرفہ استعمال ہوتا ہے, پراپر ناؤن کے طریقے میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اسم اشارہ بعید ہے, یعنی اگر آپ کسی کو اشارہ کریں گے مگر وہ دور ہو,
उसके बारे में भी हमारे पास 6 सेगे हैं। सबसे पहले ज़ालिका, ज़ालिका इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए, मुज़क्कर के लिए, मगर बईद के लिए। बईद मतलब दूर, वो इस करीब के अपोजिट में है, ठीक है। तो वाहिद, मुज़क्कर, बईद के लिए जो लफ्ज है वो है ज़ालिका, यानी वो एक मर्द या वो एक मुज़क्कर, ठीक है। तस्निया मुज़क्कर बईद के लिए, दूर के लिए है ज़ानिका, 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 यानी वो दो, सॉरी जी, वो दो मुज़क्कर, वो दो मर्द। जमा मुज़क्कर बईद यानी जमा मुज़क्कर यानी दूर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है उलाइका। और कुरान मजीद में आप देख रहे हैं उलाइका कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। उलाइकल फव्वाज़ून, वो सब कामयाब होने वाले हैं, ठीक है, फव्वाज़ून, ठीक है। इसी तरह उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो सब अपने रब के हिदायत पर है। उलाइका का जो तर्जुमा है वो सब मुज़क्कर, यानी ये जो सेगा है ये है जमा मुज़क्कर बईद का सेगा। यहाँ पर बहुत आसानी के जरिए मैंने आपको समझाया है, इसको पॉज कीजिएगा, इसकी तस्वीर लीजिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि ये भी सेगा जब भी आप देखेंगे इसम इशारा का सेगा होगा और ये मारिफा इस्तेमाल होगा। इसी तरह हमारे लिए इसम इशारा में मुअन्नस के भी 3 सेगे हैं। जिस तरह ज़ालिका होता है वाहिद मुज़क्कर बईद के लिए, वाहिद मुअन्नस बईद के लिए इस्तेमाल होता है तिलका, तिलका, ठीक है। तिलका अमानिय्युहु कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। तिलका का तर्जुमा है वो एक मुअन्नस, यानी बईद का सेगा है वो है, तो वाहिद मुज़क्कर बईद का सेगा है तिलका। तानिका, तानिका है तस्निया मुअन्नस बईद, तस्निया यानी दो, मुअन्नस यानी औरतें, बईद यानी दूर के लिए। तर्जुमा वो दो मुअन्नस या वो दो औरतें। और जमा का सेगा जो है, जिस तरह इसम इशारा करीब में हाउलाई और हाउलाई है, इसी तरह इसम इशारा बईद में उलाइका और उलाइका दोनों में कॉमन है, चाहे मुज़क्कर है चाहे ये मुअन्नस है। उलाइका इस्तेमाल होता है जमा मुअन्नस बईद के लिए भी और जमा मुज़क्कर बईद के लिए भी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। और इन 12 के 12 सेगों में कोई भी सेगा आप देखेंगे ये भी इसम इशारा है, क्योंकि यहाँ तो इसम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना इशारा के लिए, कोई भी इसम हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कहते हैं इसम इशारा। और इसम इशारा हमेशा हमेशा हमारे पास मारिफा होता है, स्पेशल होता है, खास होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर नाउन की एक और किस्म है इसमें मौसूल, ठीक है। ऊपर मैंने कुछ यहाँ पर येलो रखा है, इसको अभी आप रहने दें, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करूंगा। अभी आप तवज्जो दें, जो मैं यहाँ पर जो फेरोजी कलर में या यानी ब्लू कलर में मैंने मेंशन किया है, इस पे आप खास तवज्जो भी रखें। चौथी किस्म जो हमारे पास यानी प्रॉपर नाउन की है या मारिफा की है, इसको कहते हैं इसमें मौसूल। अरबी में कहते हैं इसमें मौसूल, उर्दू में भी इसमें मौसूल, इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है? कंजक्शन ऐसा इसम है जो दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम इसमें मौसूला, मौसूला का मतलब जो दो इसमों को आपस में जोड़े। जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, जो, जिसने, जिसको, जिसका, जिन्होंने, जिनका इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी में भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, दो इसम के जुमलों को आपस में मिलाते हैं। तो ऐसे अस्मा को जो दो जुमलों को मिलाते हैं इसमें मौसूला कहते हैं, या इसमें मौसूल कहते हैं, इंग्लिश में कंजक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो इसमें मौसूल है उनकी 6 सेगे हैं। वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ी, अल्लज़ी का तर्जुमा होता है ये, या वो, या जो, या जिसको, या जिसने, या जिससे। यानी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ी। अल्लज़ानी तस्निया मुज़क्कर के लिए, अगर हमारे पास दो होंगे तो अल्लज़ानी इस्तेमाल होगा, तर्जुमा होगा ये वो जो जिनको, जिनने, जिनसे, मगर दो मुज़क्कर के लिए।
इसी तरह जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ीना। कुरान मजीद में आप देख रहे हैं अल्लज़ीना कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। अल्लज़ीना का तर्जुमा है ये वो जो, जिनको, जिनने, जिनसे, वही चीजें जो ऊपर है मगर जमा के लिए। और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ीना, जमा मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, तस्निया मुज़क्कर के लिए अल्लज़ानी, जमा मुज़क्कर के लिए अल्लज़ीना। ये तीन के तीन हमारे पास इसमें मौसूल है मुज़क्कर के लिए। इसी तरह मुअन्नस के लिए अगर हमें मिलाना हो मुअन्नस औरत, यानी ये हमारे पास अस्मा, यानी जिसमें हमारे पास मुअन्नस या फीमेल का तज़किरा है, फेमिनाइन का तज़किरा है, उस वक्त वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है अल्लती, अल्लज़ी के बजाय अल्लती। इसका भी तर्जुमा वही है, ये वो जो, जिनको, जिसने। ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह अल्लतानी, अल्लतानी इस्तेमाल होता है तस्निया मुअन्नस के लिए। तर्जुमा ये वो जो, जिनको, जिनने, जिनसे, तस्निया मुअन्नस। और अल्लाती, अल्लाती इस्तेमाल होता है जमा मुअन्नस के लिए। जमा मुअन्नस के लिए अल्लाती या अल्लाई दोनों अरबी के जुमले इस्तेमाल होते हैं। इसका तर्जुमा हो गया है जमा मुअन्नस, यानी ये हमारे पास याद रखना चाहिए इसमें मौसूल इस्तेमाल होता है। इसका मैं अभी इंशाल्लाह आने वाले क्लास में बताऊंगा कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। अभी आज का जो लेक्चर है ना, इसमें हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कौन कौन से इसम जो है ये मारिफा है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको याद रखना चाहिए इस वक्त जो इसम की जो यानी वुसअत है, कैटेगरी है, कैपेसिटी है, ये मारिफा है, ये प्रॉपर है, कॉमन नाउन नहीं है। पांचवी किस्म जो हमारे पास इसम में मारिफा है, इसम मारिफा की सूरत में आता है, इसको कहते हैं इसम मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है। मुअर्रफ बिल्लाम भी इसको कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इसम मुअर्रफ बिअल्फी वलामी। सिंपल आप कह सकते हैं इसम मुअर्रफ बिल्लाम, या इसको हम कह सकते हैं इसम मुअर्रफ बिअल्फी वलामी। यानी कोई भी कॉमन नाउन से पहले जब आप अलिफ और लाम लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है, यानी प्रॉपर नाउन बन जाता है अलिफ और लाम लगाने से। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक इसम वलदुन, लड़का, ये आम इसम है, ये कॉमन नाउन है। मगर अगर आप ये जो अलिफ और लाम इस वलदुन से पहले लगाएंगे तो बनेगा अल वलदु, क्योंकि अलिफ लाम लग गया। अब आखिर में दुन के बजाय दु पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया अलिफ लाम लगाने से तनवीन हट जाती है। अब ये कॉमन नाउन नहीं रहा, ये बन गया एक खास लड़का। तो अलिफ लाम लगाने से भी कोई कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में तब्दील हो जाता है अरबी में। इसीलिए आप देखेंगे अरबी में अलिफ लाम लगा होता है हर जगह जहां पर हम यानी कॉमन नाउन देखते हैं, तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए अलिफ लाम लगाया जाता है। यानी इसमें मारिफा ये ऐसी इसम की किस्म है जिसके यानी जिसमें इसमें नकरा के शुरू में अलिफ लाम या अल लगाया जाता है, उससे वो मारिफा बनता है। अरबी जबान में जब भी आप अल यानी अलिफ लाम देखेंगे, इसका तर्जुमा वैसे ही लगता है जैसे इंग्लिश में द लगाते हैं। जब भी आप इंग्लिश में THE द लगाते हैं तो वो कोई भी जो कॉमन नाउन है वो प्रॉपर खुद ब खुद बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मली जब हम कहेंगे किताबुन तो हम कहेंगे ए बुक, तो ये कॉमन नाउन है। मगर जब भी मैं कहूंगा द बुक तो वो कॉमन नाउन से हटके द यानी जब आ गया तो प्रॉपर नाउन में आ गया। तो जब भी आप कोई भी इसम देखेंगे जिसमें अलिफ और लाम लगा हो तो वो उस वक्त कॉमन नाउन नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर नाउन है, या हम उसको कह सकते हैं वो मारिफा है, उसकी वसअत मारिफा है, नकिरा नहीं है। और चूंकि ये कैसे मारिफा बना, इसको कहते हैं अलिफ लाम लगाने की वजह से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस पांचवी किस्म से पहले जितनी भी चार किस्में हैं उनमें आपको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, जैसे मुहम्मदुन जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इसको हम अल मुहम्मदु नहीं कह सकते क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर नाउन है, मारब यानी मारिफा है, उसको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह हाजा, हाजा हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर है तो अल हाजा नहीं कह सकते। ये बहुत गलतियां करते हैं जो बरसगीर में रहने वाले हैं ना, किसी भी चीज के इब्तिदा में अल लगाते हैं। अल सिर्फ
उस वक्त लगता है जब ये कॉमन नाउन हो और उससे पहले आप अल लगाएंगे ताकि उसको आप प्रॉपर नाउन बनाएं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना इसमें मारिफा किसको कहते हैं। और इसमें नकरा यानी इन 5 इसमों के अलावा कोई भी इसम आप देखेंगे इसको इसमें नकरा कहते हैं। मिसाल वलदुन, ये इसमें नकरा है। वलदानी औलादुन इसमें नकरा है। अगर आप तर्जुमा देखेंगे इसमें नकरा का, इसका तर्जुमा होगा एक, कोई, चंद। जैसे मैं कहूंगा वलदुन, वलदुन का तर्जुमा होगा एक लड़का या कोई लड़का, ठीक है। औलादुन का तर्जुमा होगा चंद लड़के, कुछ लड़के। मगर जब मैं कहूंगा अल वलदु तो उसका तर्जुमा एक या कोई नहीं होगा, इसका तर्जुमा होगा लड़का, ठीक है। तो अल लगाने से या जितने भी हमारे पास प्रॉपर नाउन के टाइप है उसमें कोई या कुछ नहीं आता। जब भी आप तर्जुमा देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आप ये गलतियां पाएंगे। कुछ कोई जब भी इस्तेमाल होता है वो कॉमन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रॉपर के लिए कोई कुछ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर बात होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरह इसमें नकरा की निशानी यह है कि इसमें नकरा के आखिर में आप तनवीन पाएंगे, 2 पेश 2 जबर 2 जेर। जबकि इसमें मारिफा अगर वो मारफ बिल्लाम होगा यानी अलिफ लाम लगाने के बाद तो आखिर में तनवीन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? तो ये आप याद रखिएगा, इसमें नकरा की निशानी यह है कि आखिर में ये तनवीन होगा और वो आने यानी पीछे वाले हमारे पास 4 किस्मों में नहीं होगा। तो इस तरह आज हमने आज का लेक्चर एंड कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये मैंने बहुत आसानी के जरिए आपको सिखाया। 2 और कुछ किस्में हैं इसम की जब वो मारिफा बन जाते हैं, बट अगर मैं अभी आपको बताऊं तो वो आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उससे पहले कुछ लेक्चर्स है जब मैं इंशाल्लाह उनको पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये 2 इसमों के बारे में जो मारिफा है इनके बारे में अभी आप गैप रखिएगा ताकि उस वक्त उनको आप फिल करें, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। इस वीडियो को भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा कुछ मिनटों के बाद। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।